A very good morning and Jai Hind students. Once again, welcome to the online class of economics, continuing with chapter number 1, that is the story of village Palampur. Let's have a quick recap what we have discussed in the last lecture. Have a look. We are done with the sixth point, that was the capital needed in farming. जिस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फार्मिंग में, हाउ डू द फार्मर्स अरेंज दैट पर्टिकुलर कैपिटल. लाइक स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, और वो किससे बोरो करते हैं? आइदर फ्रॉम मनी लेंडर्स और फ्रॉम द ट्रेडर्स जो उन्हें इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सविता हियर, राइट? देन आई हैव गिवन the fill-ups in homework. Hope you all have done. So I'm dictating it. Kindly match. Among the three factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages. ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के पास ज़मीनें हों अपनी. Whereas the opportunities of work are limited. They belong to either landless families or small farmers. Small farmers means those who have small piece of land. They are paid low wages and led a difficult life. In contrast, the labor dash is a scarce factor of production. Which is a scarce factor of production? Land. Cultivated land area is small farmers. Moreover, even the existing land is distributed equally or unequally? Unequally among the people engaged in farming. There are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborers. To make the maximum use of the existing land, farmers use what? Modern farming method include multiple cropping and modern farming. Both these have led to increase in production of crops. Modern farming method require a great deal of what? Capital. Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmers. क्योंकि उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है. दे नीड टू अरेंज मनी, दे नीड टू अरेंज कैपिटल somehow. Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. What? Land, it is a natural resource, and capital is man-made. It is possible to increase capital, whereas land is a fixed one. Land, machineries, they are the fixed one. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. Right? So, let's continue with the another point, that is point number 7, sale of surplus farm products. जब फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लेट्स सपोज राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के बाद वो का करते क्या हैं? व्हाट दे ऑल डू विद दैट? सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड्स. ठीक है, फार्मर्स अपने लैंड पर वीट की प्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर एंड कैपिटल. द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट. हार्वेस्टिंग हो गई है, कटाई हो गई है वीट की, प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया है. नाउ व्हाट डू द फार्मर्स डू विद दैट पर्टिकुलर वीट? दे रिटेन. फार्मर्स क्या करते हैं? वो कुछ पार्ट अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख देते हैं और बाकी का सेल कर देते हैं मार्केट में. Small farmers like Savita and Gobind's son have little surplus wheat. अगर हम बेटा स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं तो उन लोगों के पास इतना नहीं वो लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं कि उसको मार्केट में सेल करें, क्योंकि उनको सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी चाहिए होता है. ठीक है, उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है. तो व्हाट दे यूज टू डू, लाइक सविता और गोविंद थे ना हमारे, गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है. एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट, जो कि उनके सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम आता है फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स.
Okay, so it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. Who supply wheat to the market? Either large farmers or medium farmers. ठीक है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स तो सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही इस्तेमाल कर लें तो वही काफ़ी है. ठीक है, उनके पास इतना प्रोडक्शन बहुत कम होती है, इतना प्रोडक्शन नहीं होती कि वो उसको मार्केट में सेल कर सकें. सो in the picture 1.1, the very first picture, I have already show you that picture. Yes, see this picture dear students. यहाँ पर देखो, these farmers are carrying bullock carts, और उसमें सारा जो भी सरप्लस वीट है, राइस जो भी क्रॉप है उसको लेकर जा रहे हैं. कहाँ? इन सिटीज़ एंड टाउन्स टू सेल आउट. Right? So you can see the bullock carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat. Traders क्या करते हैं? वीट को परचेज करते हैं और उसको आगे शॉपकीपर्स को बेच देते हैं टाउन्स या सिटीज़ में. ठीक है. देन कम्स द तेजपाल. तेजपाल के बारे में हमने पढ़ा था बेटा. ही इज़ अ लार्ज फार्मर लिविंग इन विलेज पालमपुर, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट. उसके पास 350 क्विंटल वीट सरप्लस है फ्रॉम ऑल हिज लैंड. ठीक है. ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग. वो ये 350 क्विंटल वीट को रायगंज मार्केट में बेचता है और उसको उससे प्रॉफिट होता है, अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि उसके पास एडवांटेज है. ही इज़ अ लार्ज फार्मर, उसके पास लार्ज पीस ऑफ लैंड है. ठीक है. वॉट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग. अब तेजपाल सिंह इस अर्निंग से करता क्या है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. लास्ट ईयर तेजपाल सिंह को जो भी फ़ायदा हुआ उसने उस मनी को अपने बैंक अकाउंट में सेव कर दिया. बाद में उसने सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स को लेंडिंग करने में सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स के लिए इजी किया ताकि वो बोरो कर सके मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह. ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू दी स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ द लोन. और क्या किया उसने? ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल आपको बताया था, कैश इन हैंड. आपको आपके फील्ड पर जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी होती है. ठीक है. छोटे मोटे खर्चे, पानी के, बिजली के, ये सब के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसने कुछ सेव करके रख लिया ताकि वो नेक्स्ट सीजन की वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर सके. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग. इस बार तेजपाल सिंह ने सोचा है कि वो एक ट्रैक्टर खरीदेगा, दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा. इट वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदना मतलब ये उसकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई. ठीक है. ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसका और बहुत लंबे टाइम तक वो चलेगा. तो अगर तेजपाल सिंह 350 क्विंटल वीट को मार्केट में बेचता है तो वो उस बेची हुई रकम से उस अर्निंग का क्या करता है? वो उस अर्निंग को गांव के छोटे मोटे फार्मर्स को लेंडिंग करने में दे देता है ताकि वो उससे बोरो कर सकें विद अ गुड इंटरेस्ट. और वो क्या करता है? उसको सेव करके रख लेता है ताकि उसको नेक्स्ट सीजन के लिए वर्किंग कैपिटल अरेंज हो जाए उसकी. व्हाट एल्स? वो उससे अपने फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करता है. वो उसके पास ट्रैक्टर है पर वो एक और ट्रैक्टर खरीद सकता है ताकि वो अच्छा काम कर सके और अच्छे से, और उसकी फिक्स्ड कैपिटल उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड कैपिटल को रेज करना. सो जैसे तेजपाल सिंह ने किया ऐसे ही बाकी सारे लार्ज और मीडियम फार्मर्स सेल करते हैं सरप्लस प्रोडक्ट मार्केट में या सिटीज़ में जाकर. अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड कैप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन. जो उनको फ़ायदा होता है कुछ पार्ट उसका सेव कर लिया जाता है और नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल अरेंज हो जाती है उनके पास. दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग. अपनी ही सेविंग से फार्मिंग करके जो उनको बचता है उससे वो बहुत सारे काम कर सकते हैं. यही उनकी अर्निंग होती है. सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ दी सेविंग्स टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स, ताकि उनके काम में और इम्प्रूवमेंट आए, ताकि वो और कुछ काम कर सकें, उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हों. As we shall see
These constitute the capital for non-farm activities. ठीक है, अभी इन्हें क्या कह सकते हैं, अगर वो शॉप खोल रहा है तो ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा. तो बेटा विलेजेस की अगर हम बात करते हैं, विलेजेस में किसी फार्मर के पास, सम फार्मर्स आर लैंडलेस, कुछ के पास बहुत स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, कुछ के पास लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड होता है, कुछ मीडियम फार्मर्स होते हैं. स्मॉल फार्मर्स को बोरो करना पड़ता है, अगर उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो दे नीड टू बोरो मनी फ्रॉम आइदर फ्रॉम द मनी लेंडर्स और फ्रॉम द ट्रेडर्स जो उनको इनपुट सप्लाई करते हैं. लार्ज फार्मर और स्मॉल फार्मर्स के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, व्हाट दे यूज टू डू, वो थोड़ा सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखकर बाकी का सब कुछ मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. उससे उन्हें जो प्रॉफिट होता है वो उसको अपने बैंक में सेव करते हैं. आगे नेक्स्ट सेशन के लिए उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, वो उसे उसके लिए यूज़ करते हैं, या वो अपने फिक्स्ड कैपिटल को रेज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं. राइट. So this was all. We are done with all the 7 points related to this, related to farming in Palampur. ठीक है. Now comes the another topic which is non-farm activities in Palampur. अभी तक हमने सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, क्या क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव होती है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हमने पढ़ा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. The another topic is, and this is the last topic, non-farm activities. Non-farm activities in Palampur. In Palampur. Okay. So बेटा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं. अब ज़रूरी नहीं है ना, कुछ हमारे पास होते हैं लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं. कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं, कुछ मीडियम फार्मर्स होते हैं, कुछ लार्ज फार्मर्स होते हैं. ठीक है. अब ये सब फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो होते हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, बट गांव में ऐसी कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है जिसमें ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है. We have learned about farming as the main production activity in Palampur. अब हम कुछ इन एक्टिविटीज़ पे जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर में होती हैं, अब हम उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे. So let me tell you, only 25% of people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. केवल 25% नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. बाकी सब रेस्ट ऑफ दी 75% फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं. ठीक है. सो इसमें सबसे पहली एक्टिविटी आपकी आती है डेयरी, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर इन विलेजेस. हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डेयरी. द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है फॉर द Palampur village in many of the families. What people used to do is people feed their buffaloes or various kind of grass and the jowar and bajras that grows during the rainy season. जो मिल्क होता है फिर वो उसे सेल आउट करते हैं रायगंज में, जो कि नियर बाय है पालमपुर के. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. Two traders Shahpur town से what they used to do, they've set up the collection, या आप उसको chilling center बोल दो. ठीक है. रायगंज में जहाँ पर मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर दूर टाउन्स और सिटीज़ तक. तो दैट मीन्स विलेज पालमपुर में ज़्यादातर जो 25% लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, डेयरिंग, दूध को बेचते हैं. ठीक है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड दी ज्वार, क्योंकि वो इसे अपना बिजनेस समझते हैं. ठीक है. अपने कंजम्पशन के लिए, अपने लिविंग के लिए वो इसे यूज़ करते हैं. ठीक है. Next, second one is an example of small scale manufacturing in Palampur. Small scale manufacturing कैसे होती है पालमपुर में? See, at present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur.
लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग? अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट take place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production method and are done on a small scale. बेटा जिस तरह से आप सिटीज़ में देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टीवी की हो, रेफ्रिजरेटर की हो, किसी भी तरह की हो, इसी तरह विलेज में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड इट इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड होता है और बहुत स्मॉल स्केल पे की जाती है. दे कैरिड आउट मोस्टली एट होम, घर से ही की जाती है, या फिर इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. पूरा परिवार उस चीज़ में लग जाता है. रेयरली आर लेबर्स हायर्ड बहुत कम लोग किए जाते हैं. फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, वो क्या है वो आप देखोगे. सी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिश्री लाल. मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन. गन्ने को क्रश करने की मशीन होती है ना, तो मिश्री लाल ने, जो कि विलेज पालमपुर में ही रहता है,